अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम मार्गरेट थैचर का जो एरा है वो उसे डिस्कस करेंगे। मार्गरेट थैचर वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और इनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप है दैट स्पैन्स फ्रॉम 1979 टिल 1990। अब 1979 से लेके 1983 तक वाज द फर्स्ट एरा। 19 सॉरी 1983 to 87 was the second stint as prime minister, and 87 to 90 was the third stint. In the 90, she was her leadership basically in the Conservative Party was challenged, and she was not able to secure the majority of votes within the Conservative Party. Therefore, she resigned, and the next member from the Conservative Party, John Major, took her place. Margaret Thatcher is also called the Iron Lady. Why? Because of her decisive decisions during the Falklands War. We'll also discuss what was the Falkland conflict in the next lecture. Iron Lady. This question was asked to me in my CSS interview, that why Margaret Thatcher is called the Iron Lady. So the answer is that because of her decisiveness in the Falklands War. तो ये भी मैंने कहा बता दूं आप लोगों को। तो देखें जी, दिस इज द क्वेश्चन दैट पास्ट पेपर में जो आया है, दैट फैक्टर्स दैट फैसिलिटेटेड द राइज ऑफ मार्गरेट थैचर। इसके अलावा भी आया है दैट जिसमें और कमेंट ऑन हर मेजर पॉलिसीज। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आए हैं जिसमें सिर्फ मार्गरेट थैचर का जो मेजर पॉलिसीज थी उन पर जो है वो एम्फोसिस मांगा गया। तो मैंने तमाम तर चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस कर दी हैं। दैट व्हाट वाज थैचरिज्म, what factors that facilitated Margaret Thatcher's rise, what were her main policies during her first government, what were the main policies during her second government, and why she was not able to secure a conservative majority in 1990 that led to her resignation. So Margaret Hilda Thatcher was the British politician who served as the prime minister from United Kingdom from 1979 to 1980. उनकी जो आइडियोलॉजी थी मार्गरेट थैचर की, और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, या फिर जैसे न्यू एक तरह से कहा सकते थे कि उन्होंने कंजर्वेटिव आइडियाज को एक तरह से रिवाइव किया था, दैट वाज कॉल्ड थैचरिज्म। और शी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेडरिक हाइक्स बुक. The book name was Road to Serfdom. And she resigned in 1990 because John Major succeeded her because she was not able to secure a conservative majority. Rise of Margaret Thatcher. Why Margaret Thatcher came into the British political scene? Because he had very new ideas. He was able to revive the right-wing ideology. जो दाएं बाजू की सियासत थी उस टाइम पर, उसमें इकोनॉमिक्स का जितना एक तरह से अमल दखल था उस पर मार्गरेट थैचर की बिल्कुल ही डिफरेंट थिंकिंग थी। वेलफेयर स्टेट के बुनियाद पर जो प्रोग्राम्स थे उस पर भी मार्गरेट थैचर की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सोच थी। तो वो हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दोज फैक्टर्स व्हिच फैसिलिटेटेड द राइज ऑफ मार्गरेट थैचर। द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक चैलेंज. There were widespread labor strikes, and that era is supposedly called the winter of discontent. Labor strikes थी, labor disputes थे, that created a sense of crisis and disillusionment with the ruling labor government. तो labor government was not successfully able to control those crises. फिर उसके बाद conservative ideology, that Margaret Thatcher जो न्यू राइट या थैचरिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, that was an advocate of conservative and free market principles, that state should not intervene in the market. अब लेबर कहता है कि हाँ स्टेट को मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन प्रीवियसली लेबर पॉलिसीज की वजह से कोई खातिर ख्वाह लोगों की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई थी. दैट इज वाई पीपल resorted to a new form of conservative ideology that was propagated at that point by Margaret Thatcher. अब public dissatisfaction इससे भी बढ़ रहा था because the performance of Labour government was not up to the mark.
और जो वोटर्स चाहते थे कि किसी और को भी चांस दिया जाए, हु वाज प्रपोजिंग समथिंग न्यू. What is Thatcherism? The first point and very important point that the role of the state in society must be minimized. इकोनॉमी जो मार्केट है दैट मस्ट बी लेफ्ट फ्री टू डेवलप, और जो रियासती अमल दखल है मार्केट के मामलात में वो कम से कम होना चाहिए. इसका मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी कायम की जानी चाहिए, नेशनलाइजेशन से हटके प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए. डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड एंड ट्रेड यूनियन शुड बी अबॉलिश, क्योंकि ट्रेड यूनियंस एक तरह से एक प्रेशर ग्रुप बन गई थी जो कि इंडस्ट्री की वर्किंग में रुकावट हाइल कर रही थी. तो मार्गरेट थैचर का जो आइडिया था कि द ट्रेड यूनियन शुड बी अबॉलिश और डायरेक्ट टैक्सेस भी जो है वो रिड्यूस करने चाहिए. Second was monetarism, that she was supporting monetarism. And what is monetarism is, it was inspired by Milton Friedman's theory that government should maintain a tight control of the money supply via the Bank of England by maintaining high interest rate. जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट आपके आज की तारीख में 2000 अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट आपका 22 या 23% पर है. अब ये क्यों है? बिकॉज द IMF वांट्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन काबू में आएगी. अब ये मनी सप्लाई कैसे कम होती है ये मैं बताता हूँ. 23%, ये पहले भी हम इस कोर्स की सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत गोश गुजार करना चाहूँगा कि जो सेंट्रल बैंक है वो नोट छापता है और बैंक्स जो है वो वही नोट जो है कर्जे की फॉर्म में देते हैं, तो मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है. लेकिन जब आप इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर ले जाते हैं तो आपको, अगर आप 1000 रुपये ले रहे हैं और आपको, बल्कि 100 रुपये ले रहे हैं और अगर आपको उस पर 1% इंटरेस्ट देना है, तो आपको इसका मतलब 100 रुपये भी वापस करने हैं और वो 1% इंटरेस्ट यानी 1 रुपया भी वापस करना है, जो कि कम है. लेकिन आज के अगर पाकिस्तान में आप 100 रुपये उधार लेते हैं और अगर 22% इंटरेस्ट रेट पे आपने वापस करना है, तो आपने 100 रुपये भी वापस करने हैं और 22 रुपये मतलब 122 रुपये वापस आपने मुझे करने हैं. तो ये लोगों के लिए लार्जर अमाउंट वापस करना मुश्किल हो जाता है, तो लोगों के लिए कर्ज लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है. इसका मतलब क्या है? मनी सप्लाई जो आपकी इकोनॉमी में है वो कम से कम हो जाती है. तो इन्फ्लेशन रोकने के लिए मिल्टन फ्रीडमैन का ये तरीका था, एंड दिस इज कॉल्ड मॉनेटरिज्म. इसके ऑपोजिट कीनेसियन इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें उसने कहा था कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए ग्रोथ जनरेट करने के लिए और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए. सेल्फ हेल्प एंड इंडिविजुअलिज्म के अफराद को सिकनेस, बीमारी में और ओल्ड एज में, मतलब पेंशन के भी खिलाफ थी, सिक बेनिफिट्स के भी खिलाफ थी, ओल्ड एज बेनिफिट्स के भी खिलाफ थी. ये प्रोविजन मॉनिटर जो थैचरिज्म में लोगों को खुद करनी चाहिए, एंड दे शुड नॉट एक्सपेक्ट द वेलफेयर स्टेट टू डू इट फॉर देम. दिस इज द न्यू राइट विंग कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी. द न्यू राइट जिसे कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू मार्गरेट थैचर, कि इसने जो दाएं बाजू की सियासत थी, राइट जिसे हम कहते हैं दायां बाजू, उसमें जो है नई जिद्दत पैदा की. एंड अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ ब्रिटिश नेशनलिज्म, जब उसने फाल्कलैंड्स वॉर में अर्जेंटीना को डिफीट किया. अगला लेक्चर बिल्कुल इसी बारे में है, तो इसको डिटेल में उस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन वो डिटेल्स यहाँ पे फिर लिखनी है. द फर्स्ट थैचर गवर्नमेंट 79 to 83. पहला प्रिंसिपल्स वाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. कोर प्रिंसिपल्स, फ्री मार्केट पॉलिसीज को परस्यू किया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेशन की, कोई करेंसी पे बन के जो है करेंसी को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, और गवर्नमेंट की जो मार्केट में इंटरवेंशन है उसको कम से कम किया. फिर इसी एरा के अंदर फाल्कलैंड्स वॉर हुई, जिसमें ब्रिटेन ने फाल्कलैंड, जो एक साउथ अटलांटिक में ब्रिटेन का एक आइलैंड था, उसको कैप्चर किया और अर्जेंटीना को डिफीट किया. और इट वाज आल्सो, फाल्कलैंड जो है स्विस क्राइसिस के बाद कोई एक तरह से मेजर फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री थी ब्रिटेन के अंदर, विच इज आल्सो, अमेरिका ने डायरेक्टली मिलिट्री ट्रूप स्टैंड करके तो सपोर्ट नहीं किया था इस वॉर के अंदर, लेकिन उसने फिर भी मदद जो है इक्विपमेंट या मिलिट्री एड की फॉर्म में सप्लाई की थी. द सेकेंड, ये थोड़ा सा ज़रा डिटेल्ड है, क्योंकि अब इसमें एक बात बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि फाल्कलैंड वॉर की वजह से, क्योंकि वो बिल्कुल 1982 में हुई थी, जो पॉपुलैरिटी थी मार्गरेट थैचर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रिटेन फाल्कलैंड वॉर जीत गया था.
और इसको एक तरह से इस तरह देखा जा रहा था कि ब्रिटेन ने अपनी नेशनल प्रेस्टीज को बढ़ाया है। इसीलिए 1983 के इलेक्शन में कंजर्वेटिव को बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली और मार्गरेट थैचर ने जो अपना मॉनेटरिज्म या फिर थैचरिज्म का रेडिकल प्रोग्राम था वो ज्यादा इस एरा के अंदर 83 टू 87 इस एरा में किया, क्योंकि जो हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजोरिटी बहुत बड़ी थी। पहला स्टेप प्राइवेटाइजेशन का किया। ब्रिटिश टेलीकॉम जो थी 1984 में प्राइवेटाइज की गई, गैस जो है 86 में प्राइवेटाइज की गई, और एयरवेज जो है वो 1987 में जो है वो प्राइवेटाइज की गई। बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज थी जिन्हें प्राइवेटाइज किया गया। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जो प्रोग्राम था दैट वाज गाइडेड बाय की प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट वन वाज कि स्टेट का रोल मार्केट में खत्म हो। द सेकंड वाज जो कॉरपोरेशन हैं, ये जो स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन हैं, ये प्राइवेट होके compete करें मार्केट में दूसरी कॉरपोरेशन के साथ, और अगर ये इनएफिशिएंट हैं तो दे आर बाउंड टू विदर अवे। द थर्ड वन इज कि गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन कम हो, कि गवर्नमेंट उनके नुकसान उठाना जो है वो बंद करे। एंड द फोर्थ वन इज दैट इट encourages इंडिविजुअल ओनरशिप। हाउएवर एट द सेम टाइम एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मेजर भी था कि थैचर की गवर्नमेंट ने कम्युनिटी चार्ज विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द पोल टैक्स, ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल एट दैट पॉइंट कि जो आबादी थी दैट वॉज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म टैक्स। तो लोगों ने इस मेजर को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रिजेंट किया। एंड एक और, क्योंकि थैचर वॉज शुरू से ही ट्रेड यूनियंस के खिलाफ थी, तो उसने ट्रेड यूनियन एक्ट जो 1984 में पास किया, उसमें ये प्रोविजन डाली गई कि ट्रेड यूनियंस ने जब भी स्ट्राइक पे जाना होगा तो ट्रेड यूनियन के अंदर उस पर वोटिंग होगी। कोई एक यूनियन लीडर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि स्ट्राइक पर अब जाना चाहिए या नहीं, ये बाय मेजॉरिटी जो यूनियन मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, which also led to a decreasing number of strikes in Britain. However, this act did not apply to Northern Ireland. Decline and downfall, जी हमें पता है 1990 में अल्टीमेटली जो है वो डिक्लाइन भी आने लग गया। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताता चलो, हमने यूरोपियन यूनियन का बाद में लेक्चर भी पढ़ना है। थैचर जो है वो ब्रिटेन की सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो हमेशा उसने स्केप्टिकल नज़रों से देखा है जब भी कोई लार्जर यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर ब्रिटेन की इंटीग्रेशन की बात होती थी, क्योंकि उसके ख्याल से दैट वुड स्नैच ब्रिटेन away from its sovereignty, that would snatch Britain's sovereignty. अब the first point is tax cuts। हमें पता है टैक्स कट्स थैचरिज्म का एक पार्ट था। द टैक्स कट्स ने गुड्स की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि लोगों के पास एक इनकम का पोर्शन जो पहले वो टैक्स में दे रहे थे अब उनकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए बच गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ी, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है, अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, बेसिक सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई। सेकेंडली, रिफ्ट ओवर ज्वाइनिंग द ERM। ERM इज द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, और ये जो है वो यूरोपियन कम्युनिटी के अंदर जो है वो इसे राइज किया गया था कि तमाम मुल्कों की एक कोई यूनिफॉर्म करेंसी की जो है वो जाके बात हो रही थी। इसमें नाइजल लॉसन वाज अ पार्टी मेंबर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड वाज एन एलाय ऑफ थैचर। उसका थैचर से इख्तलाफ हुआ इस बात पे। थैचर प्रिवेल्ड एंड नाइजल लॉसन हैड टू रिजाइन। उसके बाद जो पोल टैक्स जिसे मैंने बताया था वो कम्युनिटी पर यूनिफॉर्म टैक्स इम्पोज किया गया, दैट वाज आल्सो रिजेंटेड। और जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम था इनिशियली, उससे भी लोगों की नौकरियां काफ़ी ज़्यादा गईं, तो उस पर भी जो है थैचर के खिलाफ एक तरह से रिजेंटमेंट एग्जिस्ट करती थी। और हेल्थ जो NHS था उसको कंप्लीटली तो नेशनलाइज नहीं किया गया, but at some points competition was also introduced into the National Health Service, which was also resented by some members of the party. इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर बड़ी मेजर डिविजन एग्जिस्ट करती थी, जिसमें लीडर आहिस्ता आहिस्ता थैचर का साथ छोड़ते जा रहे थे उसकी एग्रेसिव या फिर एब्सोल्यूटिस्ट डिसीजंस की वजह से। जैसे नाइजल लॉसन का हमने नाम लिया, वो डिसीजन क्या था, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे जो स्टांस था। विलियम वाइटलॉ और हेसल्टाइन ये भी
कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने थाचर से इख्तलाफ किया। वो एग्रीमेंट लेटर थाचर प्रिवेल्ड ऑन दोज पॉइंट्स, लेकिन उन्होंने फिर रिजाइन होके, तो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर मेजर डिविजन्स एग्जिस्ट कर रही थी। और अल्टीमेटली इन्हीं डिविजन्स की वजह से 1990 में एक मेजर पार्टी के अंदर वोट हुआ। थाचर वाज नॉट एबल टू सिक्योर अ मेजॉरिटी, शी रिजाइंड एंड जॉन मेजर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन 1990। दिस इज द रेफरेंस बाय माइक टॉम्स. Mike Tom says is, whatever the shortcomings, we should remember that privatization was a bold and radical program at that point. कि उसने ब्रिटेन की जो फिस्कल बर्डन है उसको कम किया, कॉरपोरेशंस की जो क्वालिटी है उसको और पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको बढ़ाया, और जो एक तरह से जो नेशनल एक्सचेकर पे कॉरपोरेशंस आपकी नेशनलाइज होकर एक बर्डन थी, उस बर्डन को भी रिड्यूस किया। ऑल दो उसके फॉल आउट थे अनएम्प्लॉयमेंट और उसकी फॉर्म में, बट those can be contested. Thatcher can be said to have changed the industrial structure of Britain and of so many other countries, because privatization initially as a program started from Thatcher. उसके बाद ये मॉडल जो है बाकी मुख्तलिफ ममालिक में भी अडॉप्ट होना शुरू हुए, अमेरिका में, पाकिस्तान में भी हमने देखा हो कि अडॉप्ट हुए, ऑल दो वो लेटर बड़े पार्ट में अडॉप्ट हुए, बट एज अ डेवलपमेंट मॉडल जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम्स थे वो बाद में लेटर मुख्तलिफ कंट्रीज में भी जाके अडॉप्ट होना शुरू हुए, एंड क्रिएटेड अ न्यू ऑर्थोडॉक्सी ऑफ ओनरशिप दैट हैज प्रूव्ड एंड्यूरिंग एंड अडेप्टेबल, कि प्राइवेट लोग भी जो हैं वो कॉरपोरेशंस को जो है वो ओन कर सकते हैं और उन्हें एक बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। सो दिस वाज द एरा ऑफ मार्गरेट थैचर। क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस हुआ है कि वी हैव टू कमेंट ऑन हर मेजर पॉलिसीज। हमने उनकी मेजर पॉलिसीज वेदर दैट बी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, मॉनिटरिज्म और फोर्सिंग मार्केट इनटू द प्राइवेट स्फीयर, हमने और प्राइवेट सर्विसेज सच एज दी एनएचएस, हमने वो डिस्कस किया। हमने उसके इस कोटेशन में दोनों उनके एजेस देखे, एक तरह से पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, और उनकी रीजंस भी पढ़े कि वाई, बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस वाई मार्गरेट थैचर्स डाउनफॉल बिकेम एविडेंट। तो इस क्वेश्चन को काइंडली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और एमसीक्यूज़ जो हैं चैप्टर वाइज इंक्लूडेड हैं उनको भी सॉल्व करें पास्ट पेपर के, अगर आपको कहीं और से मिलते हैं। ऑल्दो हमने कोशिश की है कि इस कोर्स के अंदर आपको कहीं और ना जाना पड़े, लेकिन अगर आपको कहीं और मिलते हैं, लेकिन मैंने इनकॉर्पोरेट सारे किए हैं, लेकिन अगर आपको कहीं और से मिलते हैं तो वो भी करने की कोशिश करें, और एमसीक्यूज़ अच्छी तरह करें, कोई नॉलेज गैप अपना रहने ना दें, क्योंकि कोर्स बड़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है आपको, ताकि आप इवेंट्स को एक दूसरे से लिंक कर सकें, क्योंकि ये लिंक बनेगा तभी आप एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।